आज हमारी लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन को लेकर भारत की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन को एक टीम में लाकर खड़ा कर दिया है, यानी उन्हें एकजुट कर दिया है। Our institutions are under attack and we are completely surrounded. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And one second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. China has a plan. I can see without any doubt that the Chinese, please, we are all nationalists, so let us discuss properly. I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. This is a very, very serious threat to the Indian nation. तो राहुल गांधी ने आज ये तो कह दिया कि भारत की विदेश नीति ही बड़ी खराब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना अब एक टीम में खेल रहे हैं। होना ये चाहिए था कि भारत को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि चीन और पाकिस्तान अलग अलग रहें और वो एक टीम में ना आ जाएं, और भारत ने उन दोनों को एक टीम में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इतिहास नहीं पढ़ते। आज उन्हें इतिहास की 2-3 बातें बता देते हैं। राहुल गांधी आज देश को ये बात बताना या तो भूल गए या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि वर्ष 1963 में जब पाकिस्तान ने लद्दाख में सक्षम वैली की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को तोहफे में दे दी थी, गिफ्ट दे दी थी, तब उनके नाना जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। पाकिस्तान तो 1963 में ही चीन के साथ आ गया था। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में भी हमारे देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत के हाथ से चली गई थी, और तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो राहुल गांधी को आज ये याद रखना चाहिए कि जब नेहरू की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, तब चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था, और उसके बाद ही बहुत बड़ा हिस्सा 5000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में सौंप दिया था। अक्साई चिन्ह आजकल उसको कहा जाता है। यह राहुल गांधी बताना भूल गए। आज राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान देश के बजट को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का अपना बजट करार दे दिया। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं देश पर, और वो एक राजा की तरह शासन चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकती। ऐसे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि भारत एक साम्राज्य नहीं है और मोदी उस साम्राज्य के राजा नहीं है, बल्कि ये देश फूलों के गुलदस्ते के समान है जिसे किसी छड़ी से नहीं चलाया जा सकता। सबसे पहले आप उनकी ये बात सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि राहुल गांधी एक बार फिर से कौन सी बड़ी त्रुटि अपने इस बयान में कर गए। The people of Kerala have a culture. I'm now a member of Parliament of Kerala. I understand it slightly better. They have a culture. They have a dignity. They have a history. The people, like the gentleman said, the people of Rajasthan have a culture, have a history, have a tradition, have a language. They have a way of life. This is like a bouquet of flowers. This is our strength.
I learn from the people of Tamil Nadu. I learn from the people of Rajasthan. I learn even from you. Every day I learn from you. I do. It's not funny. It's not funny. I learn from you. Right? It's not funny. Anyway, there is another vision. A vision that India can be ruled by a stick from the center. You people have no idea of history. Because every time it has been attempted, that stick has been broken and smashed. A centralizing vision, the vision of a king. The idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? Now Speaker sir, what is happening? आप बीच में मत बोलिए. Now Speaker. हाँ, सबको. Now Speaker sir, what is happening as a result of this flawed vision? What is happening is that the instruments of the conversation between our states, the instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked and captured by one idea. So, for example, today, the idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. They can keep coming to you again and again and again and again and saying, NEET, and you will say, no, get out of here. Right? They do not have a voice in your framework. The farmers of Punjab can stand up and say, we do not agree with these three laws. They do not have a voice in your framework. Only the king has the voice. The farmers can sit for 1 year. They can sit for 1 year outside in Corona. They can die, doesn't matter. The king does not agree. You do not listen to anybody. I am proud of him. I am proud of this gentleman. He has spoken to me what is in his heart. I am proud of this man. But he is in the wrong party. Don't worry, घबराइए मत. नहीं, बीच में नहीं. लोग बीच में थोड़ी बोलेंगे. बाद में. No. Look, Speaker sir, I am a democratic person. I will allow him to speak. ये सुनो एक मिनट. ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते. ये अधिकार मेरा है. प्लीज बैठ जाइए. आप वो इजाजत दे सकते हैं क्या आसन को? वो इजाजत देने का अधिकार नहीं है. ये अधिकार आसन का है. किसको इजाजत देनी, किसको नहीं इजाजत देनी, माननीय राहुल गांधी. प्लीज बैठ जाइए. मैं दूंगा आपको मौका. मैं आपको मौका दूंगा. So, Speaker sir. So, Speaker sir. तो यहीं से आपने देख लिया, जब एक दूसरे सांसद बोलना चाहते थे तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं, आप बोलिए. यहीं से आपको यह पता चलेगा कि राहुल गांधी आज भी ये सोचते हैं कि वो लोकसभा के भी राजा हैं और लोकसभा में कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा आज भी वही तय करेंगे. क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ करता था तो जो स्पीकर महोदय हुआ करते थे वो इनके ही इशारों पर काम करते थे उस जमाने में. माफ कीजिएगा, लेकिन तब उनकी इतनी चलती थी और राहुल गांधी को लगा कि आज भी वैसे ही होगा. और
अब जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने ये बता दिया कि ये तय करना कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा आपका काम नहीं है, आपका ये अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार मेरा है। राहुल गांधी ने राजा की बात कही और कहा कि नरेंद्र मोदी एक राजा की तरह शासन चला रहे हैं। तो राजशाही की पहली निशानी यह होती है कि राजा का बेटा ही हर पीढ़ी में राजा बनता चला जाता है। राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। इसको राजशाही कहते हैं। और जो राजा होते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। और राहुल गांधी खुद एक ऐसे ही राज परिवार से आते हैं जहां राजा का बेटा राजा बनता है। और वो चाहें तो आज कांग्रेस पार्टी और अपने परिवार का ये राजशाही इतिहास फिर से पढ़ सकते हैं। उनके परिवार में पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी पत्नी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी जो कि राहुल गांधी की माता जी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जिसे चाहा यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसे प्रधानमंत्री बनाया। और फिर पहले सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और अब उसके बाद राहुल गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए बिना किसी क्वालिफिकेशन के। वर्ष 1998 से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद नेहरू गांधी परिवार के पास ही है। यानी पिछले 24 साल से एक ही परिवार देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी की शासन व्यवस्था में एक राजा की तरह बैठा हुआ है। यह बात तो उन्हें खुद अपने आप से पूछनी चाहिए कि 24 साल से एक ही परिवार एक पार्टी को कैसे चला सकता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी दूसरों को राजा नहीं बनने की सलाह दे रहे हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष खुद भी इसी आधार पर बने थे क्योंकि वो एक राजा की तरह हैं और एक ऐसे ही खानदान से आते हैं जहां राजा का बेटा राजा बनता है, कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष बनता है। और इसीलिए ये जो पद है ये उनकी पार्टी के पास ही रहता है और इसके लिए चाहे उन्होंने चुनाव ना भी लड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से कोई चुनाव भी नहीं हुआ। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ये जो है इन्हें चुना गया है और तब ये वहां पर बैठे हैं। राजा उसे कहते हैं जो एक बार कोई आदेश दे दे तो फिर उसे बदला नहीं जा सकता, जैसा 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान हुआ था। जहां तक राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता की बात है जो राहुल गांधी ने यह प्रश्न उठाया, तो पिछले 75 वर्षों में इस देश में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। और इन सरकारों के शासन में एक नहीं, दो नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 93 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया था। सोचिए, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने अब तक भारत के इतिहास में 93 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है, 93 टाइम्स। तो अब आप ये सोचिए कि राजा की तरह शासन कौन चलाता था और राज्यों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका ध्यान किसने रखा। हाल ही में पंजाब में भी ऐसा ही हुआ जब गांधी परिवार ने पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिताकर लाए थे, उन्हीं को उनके पद से हटाकर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे। ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। और ये क्या बता रहे थे, चाइनाज विजन इज वेरी क्लियर। चीना सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? और चाइना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देके चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वही व्यक्ति आज बता रहे चाइना हैज गॉट ए क्लियर विजन। Rahul Gandhi and his team, they keep praising Pakistan. They go to Pakistan and they talk in favor of Pakistan. Their Congress President of Punjab is a greatest friend of Pakistan Prime Minister. Rahul Gandhi goes to Chinese embassy. He enjoys a personal private level meeting with the Chinese ambassador. We all know how and in what manner Rahul Gandhi day and night desires to destroy the image and heritage of India. परंपराओं पर ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं क्या? Mr. Goyal, sit down. Sit down, Mr. Goyal, sit down.
Speaker sir, Speaker sir, ये भारत के धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, भारत की धार्मिक परंपराओं पे अटैक कर रहे हैं, और ये हम सबकी धार्मिक परंपराओं के ऊपर आघात मैं है। चेक कर लूंगा। हमारे घर में भी यही है परिस्थिति। Speaker sir, Speaker sir, आप it सबको खड़े हो जाते हो भाई, it ये क्या reflects- तरीका है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.